ਹੈਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਰਕੇ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਕੇ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 6 ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਸਬਜੈਕਟ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਕਲਾਸ 6th 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਖੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਟੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 9 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ good eating habits, second time management, third healthy family relation, and fourth is good touch bad touch, fifth each one plant one, sixth avoiding superstitions, seventh is cooperation and belongingness, eighth is respect for national symbols and constitution, and ninth empathy. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੌਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਨੇਮ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਦਰਸ ਨੇਮ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਸ ਨੇਮ। ਪੇਰੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਨੇਮ ਮੀਨਸ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈ ਮੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਸ ਨੇਮ, ਮਤਲਬ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈ ਮੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਨੇਮ, ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ, ਔਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਣ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਏਮ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਏਮ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਦ ਏਮ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਮ ਆਈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर फर्स्ट, गुड ईटिंग हैबिट्स। गुड ईटिंग हैबिट्स मतलब खान दियाँ अच्छियाँ आदतां, हैबिट्स हुंदा है आदतां, ईटिंग मतलब खान दियाँ और गुड मीन्स अच्छा, तो गुड ईटिंग हैबिट्स खान दियाँ अच्छियाँ आदतां। तो फर्स्ट नंबर तो एक लाइन दी हुई है, टू ईट इज़ ए नेसेसिटी बट टू ईट इंटैलीजेंटली इज़ एन आर्ट। इसका मतलब है कि खाना साडी ज़रूरत है पर समझदारी ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ मतलब ਭੂਮਿਕਾ। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, मेंटेनिंग गुड ईटिंग हैबिट्स एंड मैनर्स वाइल ईटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज टू ईट फूड। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ
ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਮੇਕ ਅਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ, ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹੈਲਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮਤਲਬ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੀਨਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। So everyone likes such a child who possesses good eating habits and eats well. ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਈਟਸ ਵੈਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਅ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਟੂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਬਰਸ਼ ਮਾਈ ਟੀਥ ਟਵਾਈਸ ਅ ਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨਲੀ 1 ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ, ਆਈ ਹੈਲਪ ਮਾਈ ਮਦਰ ਟੂ ਸਰਵ ਫੂਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ, ਆਈ ਵਾਸ਼ ਮਾਈ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਸੋਪ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮੀਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਂਡਸ ਤਾਂ ਯੈਸ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋ 'ਤੇ। ਆਈ ਵੇਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਫॉर ਮਾਈ ਟਰਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਪੂਨ ਵਾਈਲ ਈਟਿੰਗ। ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਚਮਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚਮਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਫੂਡ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਏ ਹੈਂਡਕਰਚੀਫ ਔਰ ਟੋਵਲ ਵਿਦ ਮੀ ਵਾਈਲ ਈਟਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਵਾਈਲ ਈਟਿੰਗ। ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਫੂਡ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਪੋਲਿਊਟ ਮਾਈ ਪਲੇਸ ਵਾਈਲ ਈਟਿੰਗ। ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਈਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ। तो न्यूट्रीशियस फूड का मतलब है कि जिदे विच मिनरल्स विटामिनस होण और जो साडे मतलब कि हार्मफुल ना करन, तो वो खाना मैं खांदा हाँ, खाना पसंद करदा हाँ। आई वॉश माई फेस एंड हैंड्स फॉर ईटिंग, कि खाण तो बाद मैं अपना मूँह अते हथ धोंदा हाँ। तो अगर तुसी वॉश करदे हो तो यस टिक कर दियो, और अगर नहीं तो नो ते। ओके, आफ्टर दैट तुहानूं दिता है कि गिव योर सैल्फ ए स्कोर एज फॉलोस, कि तुसी अपने आप जो तुसी पूरा फिल टेबल जो फिल कर लिया, यस ते नो टिक कर लिया है ना, फिर तुसी स्कोर देने हैं। जिन्ने तुसी यस ते टिक किए वो यस ते पॉइंट, यस के अगे पॉइंट्स कर दो, और जिन्हें नो ते टिक किए उन्हें नो के अगे। टोटल है 24 पॉइंट्स एंड योर स्कोर, अपना स्कोर फिर तुसी काउंट करके इत्थे लिख देना। ओके, नैक्सट तुहानूं एक दिता होया हुण, आई विल डू द फॉलोइंग थिंग्स टू रिफाइन माई ईटिंग हैबिट्स। तो रिफाइन का मीनस होंदा सुधारना, कि उन्होंने लिखा कि मैं अपनिया जिहड़ियां आदतां खाण दियां उन्होंने सुधारांगा। हुण किहड़ियां आदतां उन्होंने लिखा फॉलोइंग थिंग्स, हुण किहड़ियां आदतां तुसीं सुधारोगे। देखो जो तुसीं ईटिंग हैबिट्स पढ़ियां पिछे हुण तुसीं ओह इत्थे राइट कर सकदे हो, जिद्दां कि हुण तो इत्थे तुसीं किहड़ियां आदतां लिखनियां अपनियां गुड हैबिट्स जिहड़ियां तुसीं सुधारनियां है। द ब्रश माई टीथ ट्वाइस डे, यूज ए स्पून वाइल ईटिंग, डोंट टॉक वाइल ईटिंग, डोंट वेस्ट फूड,
wash your hands before and after meals। इदां दी तुसीं ਜਿਹੜੇ गुड हैबिट्स है ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ओके सो नैक्सट एक्टिविटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ let's discuss the good eating habits in the class and fill the following mind map। so fill the following mind map। now ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁੱਡ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਕਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਸ਼ ਦੀ ਟੀਥ ਟਵਾਈਸ ਡੇ, use a spoon while eating, don't talk while eating, don't waste food and wash hands before and after meal। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਸਪੂਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਚਮਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਬਿਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ आई शेयर माई फूड मतलब कि शेयर फूड विद अदर्स कि अपना खाना दूसरे नाल शेयर करना। तो ये तुसी जेह्ड़ियां गुड हैबिट्स इत्थे लिखनियां हैगियां। डोंट वरी तुसी एट द एंड ऑफ द वीडियो तुहानूं मैं एक पेज ते तुहानूं पूरियां इदां लिखियां होई गुड हैबिट्स हैगियां तुहानूं दिखा दूँगी और तुसी ओहदा स्क्रीनशॉट लै सकदे हो। इन दी ईजी वे तुसी फिर उत्थे उतार सकते हो गुड हैबिट्स। ओके एंड सब तो पहले इनू जो वीडियो खत्म होंदी है तो जो चैप्टर तुहानूं रीड करवाया उन्होंने पहले आप तुसी रीड करना है एंड उन्होंने समझना, आफ्टर दैट तुसी लिख के लर्न करना है। ओके सो ये गुड हैबिट्स तुहानूं दस्सियां इन द एंड ऑफ द वीडियो तुहानूं मैं जिहड़ा कि शो कर दूँगी, तुसी उहदी स्क्रीनशॉट लै लियो और तुसी लिख सकते हो। ओके इन द ईजी वे। आफ्टर दैट एक्टिविटी टाइम सो इत्थे एक स्टोरी दित्ती है, स्टोरी हंगर मतलब भुख। सो इत्थे एक स्टोरी दित्ती है, ध्यान नाल इहनूं समझना। ओके इट वॉज सैटरडे, शनिवार का दिन सी। ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी बिकॉज द फॉलोइंग डे वॉज संडे कि सारे ही विद्यार्थी बहुत ही खुश सी क्योंकि आने वाला दिन केड़ा सी संडे ऐतवार का दिन सी। द गैदर्ड इन द डाइनिंग रूम फॉर मिड डे मील। मिड डे मील मतलब कि दिन का जिहड़ा विच वाला जिहड़ा मिड डे दोपहर का खाना ला लो मिड डे मील। ओके ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਡਾਈਨਿੰਗ रूम ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके द टीचर मिसिस कमल इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू वॉश देयर हैंड्स विद सोप। मिसिस कमल उन्होंने दी टीचर अध्यापक सी, उन्होंने सारे बच्चों ने इंस्ट्रक्ट किया कि सारे बच्चे अपना जोड़ा हैंड्स है वो वॉश कर लो, साबन के नाल धो लो। आफ्टर बीइंग द टीचर अपनी अध्यापक का कहना मनने तो बाद स्टूडेंट सैट डाउन ऑन देयर चेयर्स टू ईट। सारे ही बच्चे अपनी चेयर्स से अपनी कुर्सियां ते बैठ के खाना खाने लिए। द फूड वॉज सर्व्ड टू ऑल ऑफ दैम। खाना उन्होंने सारे परोसिया गया। द चिल्ड्रन क्लैस्प्ड देयर हैंड्स इन प्रेयर। ਇਹਦਾ मतलब है ਹੁਣ क्लैस्प का मतलब कि जोड़ना। उन्होंने प्रेयर करन दे लई प्रार्थना करन दे लई उन्होंने सारे बच्चों ने अपने जिहड़े हथ जोड़े एंड दैन स्टार्टेड ईटिंग फूड। आफ्टर दैट उन्होंने प्रेयर करन तो बाद खाना खाना शुरू कर दिता। सम चिल्ड्रन वर निबलिंग क्वाइटली वाइल सम वर बैबलिंग। निबलिंग हुंदा है कुछ बच्चे तो कहते बहुत ही आराम नाल जिहड़ा अपना चुप आराम नाल खाना खा रहे सी, पर जिहड़े कुछ सीगे बैबलिंग मीनस बकवास कि बकवास दी इधर उधर गल्लां मारी जा रही सी। सो सम चिल्ड्रन वर निबलिंग क्वाइटली वाइल सम वर बैबलिंग। ओके नैक्सट टाइम नेहा स्टैगर्ड विद ए सैड फेस। स्टैगर्ड हुंदा हैरान। जिहड़ा नेहा बहुत ही सैड फेस मतलब कि उदास से चेहरे दे नाल हैरान हुई बिकॉज ऑफ एपीटाइट भुख दे कारण शी कुड सी ओनली फूड। भुख दे कारण सिर्फ उन्हें खाना ही दिस रहा सी। शी सैट डाउन एट हर प्लेस इन ए हरी। जल्दी दे नाल अपनी जगह ते बैठी एंड स्टार्टेड डिवोरिंग फूड विदाउट वॉशिंग हर हैंड्स। अपने हाथ धोन तो बिना ही उन्हें खाना शुरू कर दिता। सम फूड फैल हेयर एंड देयर बट शी डिड नॉट केयर अबाउट इट। खाना इधर उधर गिर रहा सी, खाना इधर उधर डिग रहा सी, गिर रहा सी, पर वो इस चीज़ की मतलब परवाह ही नहीं कर रही सी क्योंकि उन्हें भुख ही नहीं लगी हुई सी कि उन्हें सिर्फ ध्यान खाने वाल सी और खाना खाने वाल सी। आफ्टर फिनिशिंग द मील भोजन खत्म करने तो बाद शी हरिडली वेंट अवे विदाउट वॉशिंग हर हैंड्स। अपने हाथ धोते बिना ही वो जल्दी दे नाल चली गई। शी लुक्ड सैटिस्फाइड आफ्टर हैविंग हर मील मतलब कि खाना खाने तो बाद वो जिहड़े कि एकदम रज गई। मिसिस कमल वॉज कैचिंग साइट ऑफ ऑल दिस साइलेंटली।
ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। But she didn't care it was appropriate to say something at that time. Rather she waited for the right time. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। She had perceived that. ਸੋ ਪਰਸੀਵਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਪਨ ਟੂ ਹਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਊਰੀਅਸਲੀ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਫਟਰ ਹਾਫ ਏ ਡੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਨੇਹਾਜ਼ ਕਲਾਸ, ਨੇਹਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ। ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰ ਚੈਟਿੰਗ ਵਾਈਲ ਸਮ ਵਰ ਰੀਡਿੰਗ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੈਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੈਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। The children became as silent as the grave on seeing Mrs. Kamal. ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ। ਗ੍ਰੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਸੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੀ ਕਨਵਰਸਡ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰਡ, ਕਨਵਰਸ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟੂਡੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋਬਡ ਯੈਸ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਨੇਹਾ ਵਾਜ਼ ਟੰਗ ਟਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੇਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੌਨ ਧਾਰਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਟੀਅਰਸ ਰੋਲ ਡਾਊਨ ਹਰ ਚੀਕਸ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਅਪਰੋਚਡ ਹਰ, ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਐਂਡ ਵਾਈਲ ਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਹਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਇਨਕੁਆਇਰਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਟੀਅਰਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਹੰਗ ਹਰ ਹੈਡ ਐਂਡ ਕੈਪਟ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਂਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰ ਫਰੈਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਸਾਈਡ ਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਦੈਟ ਨੇਹਾ ਹੈਡ ਨਾਟ ਈਟਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਿੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਹਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਰੇਜ਼ਡ ਹਰ ਐਂਡ ਟੁੱਕ ਹਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ੀ ਆਫਰਡ ਹਰ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਹਰ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਨੇਹਾ ਰਿਪਲਾਈਡ ਦੈਟ, ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਈਟ ਐਟ ਹਰ ਹੋਮ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਟ ਹਰ ਹੋਮ ਵਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਫਾਦਰਸ ਇਲਨੈਸ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਦੁਰਭਾਗਯ, ਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਰਭਾਗਯ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਈਟਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਿੰਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਿਆ। ਦੈਟ ਮੇਡ ਹਰ ਕਮ ਟੂ ਸਕੂਲ ਹੰਗਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਭੁੱਖੀ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਵਰਟੀ ਵਰ ਸਪਾਰਕਲਿੰਗ ਇਨ ਹਰ ਆਈਜ਼, ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪੋਵਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬੀ, ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਪਾਰਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਈਜ਼ 'ਚ। ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਕਾਲਮਡ ਹਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਆਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਫੂਡ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। She also explained to them the importance of washing hands before and after meals, proper etiquettes at the dinner table, and good eating habits as well as manners. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮੀਲਸ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਸ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਜਰਮਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਧੋਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਹੈਂਡਸ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟੀਕੇਟਸ ਹੁੰਦਾ शिष्टाचार एक प्रॉपर एटिकेट शिष्टाचार के नाल खाना खाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिनर टेबल से ओके एंड गुड ईटिंग हैबिट्स एज वेल एज मैनर्स खाने दी अच्छी आदतां ते शिष्टाचार रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो हुण इत्थे जिहड़ी स्टोरी खत्म होंदी है अगे नैक्सट साडा क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं तो ये पूरा चैप्टर सीगा रीडिंग से चैप्टर की जिहदे विच सानूं सब तो पहले तुहानूं दस्सिया गया सीगा इंट्रोडक्शन उस तो बाद तुहानूं एक एक्टिविटी सीगी आफ्टर दैट एक टेबल से गुड ईटिंग हैबिट्स आ दैन स्टोरी स्टार्ट हुई हंगर भुख जिहदे विच एक कुड़ी सी नेहा उन्हें रात का कुछ नहीं खादा सीगा क्योंकि जिहड़े घर दे विच बहुत ही प्रॉब्लम चल रही सी फादर बहुत ही उन्होंने बीमार से इस करके उन्हें घर की स्थिति बहुत खराब से इस करके उन्हें कुछ भी नहीं खादा। जदों सवेरे अपने स्कूल आई भुखी तो जदों उहदे सामने जदों खाना आया तो जिहड़ा खाना खाने तो पहले हाथ भी नहीं उन्हें धोते दैन जदों उहदे सामने खाना आया तो सब कुछ छड्ड के सिर्फ भोजन खान लग गई और इधर उधर उन्हें जोड़े खाना डिग भी रहा गिर भी रहा सी पर उस चीज़ की केयर नहीं कर रही सी जबकि बहुत ज़्यादा गलत है पर वो जी घर की स्थिति नहीं सही से करके उधर नाल इदा होया पर ये तो सानू ये मॉरल मिलती है कि जो भी असीं खाना खान बैठिए तो सब तो पहले अपने हैंड वॉश करिए उस तो बाद आके प्रेयर उन्होंने प्रेयर भी की सी राइट करके उस तो बाद अपना भोजन करना स्टार्ट करने मील खाना जो अपना फूड करना खाना स्टार्ट करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਗਿਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। सो फस्ट क्वेश्चन दिता सानू राइट इन योर ओन वर्ड्स वट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी कि तुसी इस स्टोरी तो जो भी सीखा अपने वर्ड्स एक्सप्लेन करना है राइट लिखना है ठीक है। तुहानू इहदे 3 लाइन्स दित्तियां तुहानू हुण इन दी एंड ऑफ द वीडियो तुहानू मैं दिखाऊंगी और उहदे तुसी स्क्रीनशॉट लै लियो क्वेश्चन आंसर मैं लिखे हुए ठीक है तुसी उहदे स्क्रीनशॉट लै सकदे हो पर सब तो पहले इन्हां नू क्वेश्चन और आंसर नू समझ लो ठीक है। इन द एंड ऑफ द वीडियो शो कर दूँगी तुहानू तुसी स्क्रीनशॉट लै सकदे हो पर हुण समझ लो ठीक है। सो इनकी अपने शब्दों में तुसीं इनू लिखना है तो जोड़ा भी बच्चा ये स्टोरी रीड करेगा उन्हें समझेगा जो भी उन्हें लर्न किया स्टोरी तो सिंपल और राइट कर लो अपनी जोड़े वर्ड्स के ठीक है। पर एक गल ध्यान रखनी है वो जोड़े सेंटेंस एकदम सही मतलब उसकी मीनिंग बने ठीक है। सो मैं तो दसांगी कि मैं की लर्न किया इस स्टोरी तो जो जो हम तुहानू दस्सिया राइट कि अपने करना तो इस स्टोरी तो सानू यही सिक्ख्या मिलती है कि ओके जेड़े बच्चे नाल लिखना चाहते तो नाल भी लिख सकते हैं मैं बोल दी हाँ। फर्स्ट देखो फर्स्ट पॉइंट बनाओ और उत्थे लिखो वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। इसका मतलब है भोजन खाने तो पहला और भोजन खाने तो बाद सानू अपने हाथ चंगी तरह धोने चाहिए हैं ठीक है। सो वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील और आप इदा भी लिख सकते हैं आफ्टर ईटिंग ठीक है। नैक्सट सेकेंड पॉइंट वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग खाना खाने समय सानू गल नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट पोल्यूट आर प्लेस वाइल ईटिंग खाना खाने समय जी अपनी जगह को गंदा नहीं करना चाहिए खाने इधर उधर नहीं गिराना चाहिए। वी शुड नॉट पोल्यूट आर प्लेस वाइल ईटिंग ओके। सो अगर इतने 3 लाइन्स दी तो 3 पॉइंट्स लिख सकते हो ठीक है। जोड़े ज़्यादा लिखना चाहते ज़्यादा पॉइंट्स बनाना चाहते तो तुम स्टोरी रीड की अपने ओन वर्ड्स उससे राइट कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं रिपीट करने लगी हाँ फर्स्ट पॉइंट वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। सेकेंड वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग एंड थर्ड वी शुड नॉट पोल्यूट आवर प्लेस वाइल ईटिंग ओके। उस तो बाद है सेकेंड क्वेश्चन What would Mrs. Kamal have explained about the good eating habits and manners that are to be followed at dining table? Mrs. Kamal ने जो टीचर सी उन्होंने की एक्सप्लेन किया गुड हैबिट्स बारे मैनर्स बारे शिष्टाचार बारे की एक्सप्लेन किया एट द डाइनिंग टेबल। तो तुसी लिख सकते हो Mrs. Kamal instructed the students to wash their hands with soap before and after meals
proper etiquettes at the dinner table, and good eating habits as well as manners. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟੀਕੁਏਟ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਐਟ ਦ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਕਮਲ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। तो इन दी एंड ऑफ द वीडियो मैं तुहानूं बार बार कह रही हाँ, एंड ऑफ द वीडियो तुहानूं शो कर देंगी क्वेश्चन आंसर्स, तुसीं उस ते स्क्रीनशॉट लैके अपने कॉपीज़ से नोट डाउन कर सकते हो। पर हुण समझ लो कि सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया। आफ्टर दैट, डियर चिल्ड्रन रिमैंबर देयर इज़ नो एज टू लर्न, कि प्यारे बच्चों सीखण दी कोई भी उम्र नहीं हुंदी। वी कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग एनीवेयर एंड एनीवन, कहंदी असी कोई भी चीज़ किते भी अते किसे तो भी लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स इन आवर सैल्व्स, अपने विच जिहड़ियां अच्छियां आदतां अपने दे विच अपने अच्छियां आदतां लै सकदे हैं बाय अडॉप्टिंग गुड ईटिंग हैबिट्स इन रियल लाइफ, कहंदे इन दी रियल लाइफ दे विच कि असल जिंदगी दे विच तुसीं जे गुड हैबिट्स नूं अपनाओगे, गुड ईटिंग हैबिट्स नूं अपनाओगे, यू कैन टेक योर फ्यूचर टू न्यू हाइट्स, कि नवीं उचाइयां दे विच तुसीं अपने जिहड़े भविष्य नूं लै सकदे हो। ओके, आर हैबिट्स गाइड अस, जिहड़ियां साडीआं आदतां सानूं सिखांदियां। दीज टाइनी हैबिट्स बिल्ड आर परसनैलिटी ओवर टाइम, कि हमेशा दे लई जिहड़ियां गुड हैबिट्स ईटिंग हैबिट्स साडीआं साडी परसनैलिटी नूं डिवैलप करदियां, साडी परसनैलिटी होर भी अच्छी कर दिंदियां। ओके, लेट्स सी वट वी हैव इम्बिब्ड, लेट्स सी वट वी हैव इम्बिब्ड, लेट्स सी वट वी हैव इम्बाइब्ड। डिस्कस द फॉलोइंग 5 क्वेश्चनस विद योर टीचर वन बाय वन। हुण वन बाय वन एक एक करके अपने जो टीचर दे नाल क्वेश्चनस तुसीं डिस्कस करने ने लिखे। यू नो यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, तुहानूं पता है कि खाना खाण समय सानूं नहीं बोलना चाहिए, तुहानूं नहीं बोलना चाहिए। देयर इज़ अ स्टूडेंट इन योर क्लास, तुहाडी क्लास 'च एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, हू चैट्स ए लोट वाइल गोबलिंग फूड, जिहने बहुत ही गल्लां करदा है खाना गोबलिंग दा मतलब की हुंदा है? गोबलिंग दा मतलब हुंदा है मतलब कि खाना खाण समय बहुत ही ज़्यादा गपशप करता है, बहुत ही ज़्यादा गल्लां करता है। ठीक है, वट विल यू डू टू इंप्रूव हिज और हर हैबिट, ਉਹਦੀ हैबिट ਉਹਦੀ आदत ਨੂੰ इंप्रूव सुधारन दे लई तुसीं की करोगे, है ना, वट यू विल डू। सो ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जो भी ਤੁਹਾਡੇ पॉइंट्स ऑफ व्यू ਤੁਸੀਂ जो भी देखो, सपोज करो ही एक बच्चा है ਤੁਹਾਡੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ खाना खाण समय बहुत ही ज़्यादा गल्लां करता है, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ पता है कि खाना खाण समय गल्लां नहीं करीदियां ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, सो तुसीं ਉਹਦੀ आदत ਨੂੰ इंप्रूव ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो मेरे तो दिमाग 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, आई विल सजेस्ट हिज और हर टू नॉट टू टॉक वाइल ईटिंग फूड। मैं ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। और ये जो भी ये लाइन लिख के आई विल सजेस्ट हिज और हर टू नॉट टू टेक फूड वाइल ईटिंग फूड लिख के अपने व्यूज़ तुसीं ऐड कर सकते हो। ओके, और एक बार अपने टीचर नाल डिस्कस करियो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ भी नॉलेज होएगी और ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ भी आ जाएगा। What are the things one should keep in mind at the dining table? Give your views। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ व्यूज़ लिखने, ਇਹਦੇ एग्जाम ਤੁਹਾਨੂੰ जो क्वेश्चन आवे तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ व्यूज़ लिखने। ठीक है, सो आ देखो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ डाइनिंग टेबल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। वन शुड ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। वन शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड एट द डाइनिंग टेबल, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ डाइनिंग टेबल 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। फर्स्ट पॉइंट, वन शुड वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाण तो पहला ते बाद सानू हाथ धोने चाहिए हैं। फॉलो प्रॉपर एटिक्वेट्स एट द डिनर टेबल, कि जो डिनर टेबल ते सानू प्रॉपर एटिक्वेट्स फॉलो करने चाहिए, प्रॉपर शिष्टाचार फॉलो करना चाहिए है। एंड गुड ईटिंग हैबिट्स एज वेल एज मैनर्स, जोड़े कि खाने दी अच्छी आदतां भी सानू ध्यान च रखनी चाहिए कि सानू मैनर्स खाना खाना चाहिए। ये चीज़ां सानू डाइनिंग टेबल ते ध्यान च रखनी चाहिए हैं। ओके, तो होर जिहड़े तुहाडे व्यूज़ है तुसीं इत्थे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट टू ईट समथिंग वाइल स्टडिंग, पढ़ाई करते वक्त कुछ खाना अच्छी आदत नहीं है। What will you do to help a student improve his or her habit if he or she eats toffees or something else while studying in the classroom? देखो नॉर्मली तुम देखा होगा, तुम क्लास स्टडी कर रहे हो, क्लास कुछ बच्चे की करते खाना खाने समय जो टीचर का ध्यान नहीं होंदा तां जिहड़े बहुत ही शरारती बच्चे होंदे वो की करते खाना खाने समय टॉफी खा लेंदे, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सो उहदी आदत नूं इंप्रूव करने वास्ते तुसीं की करोगे, राइट। I will suggest
him or her some tips to change eating habits while studying। कि पढ़ाई करते समय जी अपनी ਉਹਨੂੰ ਉਹ मतलब ਕਹਿੰਦੇ मैं अपने व्यूज़ दस रही कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ कि ਜਿਹੜੇ कि पढ़ाई करते वक्त ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਫੀਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। यू जस्ट डू इट वट एवर यू वॉन्ट कि तू जो चाहना है उही तू कर सकता है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग बाय देयर सेल्फ कि ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਸਪੋਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਯੂਰ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਵੀਪਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਰੈਵਨਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰੈਵਨਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਰੈਵਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੇਵਕੂਫ। ਰੈਵਨਸ ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੂਪਿਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੂਪਿਡ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਹੈਲਪ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਹਿਮ ਐਂਡ will ask him not to take any word on his heart ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਫੀਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਟੂਪਿਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ, ਕਿ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਔਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1.4 ਲੈਟਸ ਚੂਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਂਗ ਹੈ देखो जी चीज़ राइट है तो लिख लो राइट है चीज़, जी रोंग है तो लिखो रोंग है। सो सब तो पहले आप देखेंगे आ देखो सब तो पहले सेंटर वाला देखो स्ट्राइक आउट द रोंग चॉइस। हम स्ट्राइक का मतलब जो आप देखिए तो स्ट्राइक का मतलब होंगे कुछ अलग करना और कुछ ऐसा करना जिदा तुहानू इंडिपेंडेंट फील होवे, मतलब तुहानू इदा ना फील होवे कि असीं किसी ते डिपेंड हैगे आ, किसी ते निर्भर हैगे आ, कुछ इदा का काम करना। तो इत्थे लिखिया है स्ट्राइक आउट दी। स्ट्राइक आउट का मतलब एक फ्रेज है स्ट्राइक आउट, पूरा स्ट्राइक आउट का मीनिंग ये है कि असीं इंडिपेंडेंट फील करिए, कुछ ऐसा काम करना जिन्हें असीं इंडिपेंडेंट फील करिए। तो स्ट्राइक आउट एक फ्रेज है और इसका मीनिंग ये है। स्ट्राइक आउट दी रोंग चॉइस, किसी रोंग चॉइस नू चूज़ करिए, मतलब कुछ रोंग चॉइस मतलब गलत चॉइस, गलत काम ऐसा कुछ गलत चॉइस करिए, गलत चूज़ करिए कुछ और ये कहते असी देखो कुछ गलत चूज़ करना जिससे असी डिफरेंट फील करिए, जबकि गल तो गलत हैगी है तो तुम लिख सकते हो इट इज़ ए रोंग, ठीक है। नैक्सट तुम तो ऊपर देखोगे ग्रीन बॉक्स है वो लिखा हुआ है वॉश योर हैंड्स बिफोर मील। खाना खाने तो पहला तुहानू अपने जो हत्थ है धोने चाहिए, धोने हैं, ठीक है। सो ये करोगे राइट थिंग है, सही है ना, सानू धोने चाहिए, इस करके आप इतने टिक कर देंगे कि ये राइट लिखेंगे इट इज़ राइट। अगे देखो ये नाल ही येलो कलर बॉक्स है और देखो लिखे डोंट वेल फॉर योर टर्न, डोंट वेट फॉर योर टर्न कि अपनी वारी के लिए वेट ना करो, जबकि ये गलत चीज़ है कि सानू अपने टर्न के लिए वेट करना चाहिए, पर इतने कि लिखे डोंट वेट तो इतने गलत है, लिखेंगे इट इज़ रोंग। इधर थले आ जाओ तो लिखेगा ग्रीन बॉक्स, इधर लिखे कीप टॉकिंग वाइल चूइंग फूड कि खाना चबान, चूइंग होता चबाना, खाना चबान वक्त खाना खाने समय कहते कीप टॉकिंग बोलो, जबकि गल तो गलत है, सो इट इज़ रोंग। तुसी अपने माइंड नाल सोचो जो चीज़ तुहानू गलत लग रही है वो तुसी गलत करो, जो सही तो सही कर दो। कि ना ही देखो येलो बॉक्स है वो लिखा है थैंक गॉड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, भोजन खाने तो पहला भोजन खाने तो बाद परमात्मा का धन्यवाद जरूर करो। गॉड का थैंक
थैंक यू जरूर कहो परमात्मा नूं, गॉड नूं थैंक यू जरूर कहो, ठीक है। दैट इज़ ए बहुत अच्छी आदत है। सो इनू आपां की कहांगे, इट इज़ राइट। उस तो बाद देखो उहदे उपर थोड़ा चल जी, तो ये ग्रीन बॉक्स लिखा है सर्व फूड विद लव, प्यार ना खाना परोसो। दैट इज़ वेरी अच्छी गल है ना। सो इत्थे लिखांगे इट इज़ राइट। इस तो उपर येलो बॉक्स लिखा है ईट रैशली। रैशली मतलब काली दे नाल, ईट रैशली काली नाल खाना, जबकि मतलब कि जल्दी दे नाल खाना है ना, ये बहुत गलत गल है, सानू आराम नाल खाना चाहिए। सो दैट इत्थे किया गया इट इज़ रॉन्ग। तो ये सीगा जिन्होंने आप चूज़ करना है राइट और रॉन्ग थिंग। ओके नैक्सट, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, यू मस्ट फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स एंड मैनर्स। सानू अपने अच्छी आदत खाने दी अच्छी आदत तो शिष्टाचार फॉलो जरूर करना चाहिए। कहते दीज हैबिट्स विल बिकम ए गोल्डन पार्ट ऑफ योर फ्यूचर लाइफ, कि आने वाली जी जिंदगी है वो तुहानू बहुत ही अच्छी बना देगी। अपनी आदत जी गोल्डन पार्ट, एक सुनहरी जड़ा भाग बन जाएगा तुहाडी जिंदगी का आने वाले फ्यूचर का। फर्स्ट तुहानू दिता गया हैव यू मेक एनी चेंजिस इन योर सैल्फ, कि तुसीं अपने अंदर चेंजिस कीतियां हन। हैव यू मेक एनी चेंजिस इन योर सैल्फ, कि तुसीं अपने विच कुछ जड़ियां चेंजिस कीतियां हन। इफ सो अगर कीतियां हन, लिस्ट एट लीस्ट 5 गुड ईटिंग हैबिट्स, 5 कुछ अच्छी आदतों की लिस्ट अपने लिखो है ना। सो फर्स्ट लिखोगे आई हैव ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे, कि दिन में 2 बार ब्रश करना। मैम हुण देखो आई हैव ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे, 3 बार 2 बारी मैं अपने दंदां नूं ब्रश किया, मतलब ये अच्छी आदत आप सुधारी। लिखांगे कि मैं दिन में 2 बार ब्रश किया। सैकेंड है आई हैव यूज ए स्पून वाइल ईटिंग, खाना खाने समय खाना खाते वक्त मैं जड़ा चम्मच की वरतों की। आई हैव नॉट टॉक वाइल ईटिंग, खाना खाने समय मैं गल नहीं की। आई हैव नॉट वेस्ट फूड, मैं खाना वेस्ट नहीं किया। आई हैव वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने तो पहला और बाद मैं अपने हाथ धोते। तो ये आदत आप सुधारियाँ। सो तुसीं अपनी हैबिट्स लिख देनी। ओके नैक्सट है मेक ए पोस्टर शोइंग गुड ईटिंग हैबिट्स, एक पोस्टर बनाना है जो कि गुड हैबिट्स को शो करे। देखो हुण आ देखो लास्ट जो पेज नंबर 3 के लास्ट एक पोस्टर बनया है, वो एक हुण तुहानूं 2 स्टूडेंट्स दिख रहे जिहड़े कि बहुत ही मैनर्स दे नाल खाना खा रहे हैं ना। तो तुसीं इदां दा कोई पोस्टर शो करना है जिहदे विच जिहड़े कि स्टूडेंट्स मैनर्स और गुड ईटिंग हैबिट्स नाल खाना खा रहे हो, तुसीं ये वाला पोस्टर भी इत्थे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके जिहदे विच बस तुसीं ये ध्यान रखना पोस्टर जिहड़े स्टूडेंट्स गुड हैबिट्स नाल और मैनर्स नाल खाना खा रहे हो। ओके थर्ड डिस्कस अबाउट दी गुड ईटिंग हैबिट्स इन द मॉर्निंग असैंबली, मॉर्निंग जी सवेर की असैंबली साडे स्कूल च ना होंदी है, यार एक स्कूल च होंदी है मॉर्निंग असैंबली, उहदे विच गुड ईटिंग हैबिट्स डिस्कस करनी। ओके ये एक्टिविटी एक आगे दिता एक लाइन है, देखो येलो ब्लॉक के लाइन दी है गुड ईटिंग हैबिट्स इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन अस एंड मेक अस हैल्दी। हुण देखो कॉन्फिडेंस हुंदा है भरोसा विश्वास, इंस्टिल हुंदा है पैदा करना, मतलब कि पैदा होना है ना, एंड हेल्दी हुंदा स्वस्थ रहना। सो गुड ईटिंग हैबिट्स इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन अस एंड मेक अस हैल्दी, कि जो गुड ईटिंग खान दियां अच्छियां आदतां साडे विच जिहड़ियां एक विश्वास पैदा करदियां हन अते कॉन्फिडेंस हुंदा ना। कॉन्फिडेंस साडे जदों भी आपां किसी इंटरव्यू ते जांदे साडे कॉन्फिडेंस की कमी हुंदी है। सो जिहड़ी उस कॉन्फिडेंस की गल कीती, गुड ईटिंग हैबिट्स जिहड़ियां हैगियां साडे अंदर विश्वास पैदा करदियां हैगियां अते सानूं स्वस्थ रखदियां स्वस्थ बनांदियां। ओके अगे है एक लाइन है लाइफ लिव ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, लिव ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, कि स्वस्थ अते खुशहाल जिंदगी जीवो। स्पैशल सजेशनस फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट, ये टीचर वाले जो सजेशनस है मतलब सलाह है ना टीचर वाला स्टूडेंट नूं है। सो ये टीचर्स वालों जिहड़ियां स्टूडेंट नूं सलाह दित्ती जां ओह तुसीं इत्थे लिख सकदे हो। ओके दैट इज़ ओनली ए एक्टिविटी। सो इत्थे साडा चैप्टर खत्म हुंदा है। इस पूरे चैप्टर के विच आपां अच्छियां आदतां गुड ईटिंग हैबिट्स मैनर्स बारे डिस्कस किया। तो जो भी तुसीं बेटा सब तो पहले तो जो वीडियो खत्म होएगी प्लीज़ इस चैप्टर में अच्छी तरह रीड करियो और उन्होंने एक बार ट्रांसलेट अपने आप ट्रांसलेट करके देखो समझो। ओके फिर तुसीं इन्हूं क्वेश्चन आंसर लिख के इहदे लर्न करो। ओके पर पहले समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक गल याद रखो जो भी तुसीं किसी चीज़ को समझ लैंदे हो ना तो लर्न करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होंदा। ओके सो साडे इत्थे जिहड़ा चैप्टर खत्म हुंदा है जिहदे विच आपां पूरा चैप्टर रीड किया और बहुत ही अच्छी चीज़ां बहुत देखो कितनी इंटरस्टिंग चीज़ां आपां इहदे विच सुनियां और देखियां भी है ना और असीं रीड कीतियां एंड इहदे क्वेश्चन आंसर आपां हुण कर चुके हैं। तो हुण जिहड़ा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੀ क्वेश्चन आंसर ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ फर्स्ट आंसर थोड़ा ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखना। ओके पहले देख लेना, सुन लो। सब तो पहले देखो वेलकम लाइव चैप्टर फर्स्ट गुड ईटिंग हैबिट्स। फर्स्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ एक्सपर्ट्स फ्रॉम दिस स्टोरी वाली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ फर्स्ट क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਗੁੱਡ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਹੰਗਰ ਸਟੋਰੀ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 3rd ਪੁਆਇੰਟ। देखो मेरी गल ध्यान नाल सुनो, जे एग्जाम दे विच क्वेश्चन आ जाए कि तुसी पूरे चैप्टर तो की सीखिया तो तुसी ये आंसर लिख सकते हो, पर अगर तुहानूं आवे कि स्टोरी जिहड़ी हंगर है उदों तो तुसी की सीखिया तो तुसी लिख सकते हो वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। जिहड़ा 5th पॉइंट है वो तुसी लिखना है, तुसी लिखना है कि वी शुड नॉट पोल्यूट आवर प्लेस, या वी शुड नॉट पोल्यूट आवर प्लेस वाइल ईटिंग। खाना खाने से ਜਿਹੜੀ अपनी जिहड़ी आस पास की जगह है तुसी पोल्यूट नहीं करनी। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਮਾਈ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਸੋਪ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮੀਲਸ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ, ਹੰਗਰ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ आई डोंट पोल्यूट माई प्लेस वाइल ईटिंग। ये देखो ये जो पॉइंट है लास्ट 3rd पॉइंट है, आई डोंट पोल्यूट माई प्लेस वाइल ईटिंग। खाना खाने से मिनट साड़ी अपनी जगह है उन्होंने गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ये भी है आई वॉश माई फेस एंड हैंड्स आफ्टर ईटिंग, कि खाना खाने तो बाद सानू अपने हाथ ते मूँह धोने चाहिए, ये भी तुम लिख सकते हो। सो ये जो पॉइंट्स हैगी है, तो आई वॉश माई हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स, आई डोंट पोल्यूट माई प्लेस वाइल ईटिंग, आई वॉश माई हैंड्स आफ्टर ईटिंग। ये जो पॉइंट्स तुम जो स्टोरी तो सीखे हो तुम लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नैक्सट है बी क्वेश्चन, what should Mrs. Kamal have explained about the good habits and manners that are to be followed at dining table। सब तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगे नैक्सट आप आंसर देखिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी दे नाल, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज प्लीज़। ओके ले लिया। नैक्सट देखो, नेक्स्ट ए बी क्वेश्चन है, मिसेस कमल इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू वॉश देयर हैंड्स एंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स, प्रॉपर एटिक्वेट्स एट द डिनर टेबल एंड गुड ईटिंग हैबिट्स एज वेल एज मैनर्स। तो इन मैंने तुहानूं मीनिंग अच्छी तरह समझा दिता है, एक बार रीड करना, समझना और फिर लर्न करना। ओके। तो इहदा पूरा पेज स्क्रीनशॉट लै सकदे तुसीं। अगे तुहानूं क्वेश्चन दिता है, ए क्वेश्चन होंदा फिर तुसीं आंसर देखो। ये हुण जिहड़ा ए क्वेश्चन है ना, लेट्स सी वट वी एम्बाइब्ड, इहदे जिहड़ी फर्स्ट क्वेश्चन है ना उहदे विच तुसीं मैं लिखिआ आई विल सजेस्ट हिज और हर to not to talk while eating food। इस तो बाद तुसी जेडे अपने व्यूज़ इफ़ यू हैव मोर व्यूज़ सो यू कैन ऐड हेयर, अगर तुहाडे कोल होर व्यूज़ है तो तुसी ऐड कर सकते हो। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन दिता पॉइंट्स दे विच तुसी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्विकली स्टूडेंट्स टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सो वी कैन मूव टू नैक्सट। ओके नैक्सट हाँ देखो आ सीगा बी क्वेश्चन सेकंड पॉइंट फॉलो प्रॉपर एडिक्वेट सेट दिस, सो इतने कंप्लीट होंदा है साडा क्वेश्चन। ठीक है। सी क्वेश्चन है तुहानूं समझा दिता अच्छी तरह, ध्यान नाल देख लो। इहदे विच देखो तुहानूं ना जिहड़े आ सी क्वेश्चन है ना, इहदे विच लिखिआ आई विल सजेस्ट हिम और हर सम टिप्स टू चेंज ईटिंग हैबिट वाइल स्टडिंग। अगले जिहड़ी लाइन्स है ना ये लिखण दी लोड़ भावें चलो नहीं है, क्योंकि जे तुहानूं ये आंसर आंदा 1 नंबर 2 नंबर तुसीं सिर्फ एक लाइन लिख सकते हो। अगर एक 1 नंबर 4 है तो 1 लाइन लिख सकते हो, अगर ज़्यादा तो अपने व्यूज़ इतने लिख सकते हो। ओके ऐड दिस व्यूज़। अगर तुहानूं डिफिकल्ट लाइन लग रही है कि दैट इज़ टू इज़ योर माइंड नो वन कैन फीट ना, तो जे लाइन डिफिकल्ट लग रही है तो कोई गल नहीं, लीव दैट लाइन। ओके कोई मुश्किल नहीं है, तुसीं एक लाइन लिखो और जो अपने व्यूज़ है ना ज़्यादातर जो अपने व्यूज़ वो ऐड करो ताकि तुहानूं अच्छी तरह और भुल्लो ना, तुसीं याद रहे है ना, एग्जाम से तुहानूं याद करने की लोड़ ही ना पवे। तुसीं क्वेश्चन पढ़िया तुहानूं पता लग गया हाँ साडे व्यूज़ ये तुसीं लिख सकते हो। सो दैट्स वाई भावें तुसीं लाइन डिफिकल्ट लग रही है तुसीं ना लिखियो, लीव दैट नो प्रॉब्लम, एंड तुसीं 1 लाइन देखो अपने व्यूज़ ऐड कर सकते हो। नैक्सट डी क्वेश्चन आई थिंक सो आपां ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है ना। फूड इज़ आर बेसिक नीड एंड इज़ वैल्यूएबल। ये देख लो फूड इज़ आर बेसिक नीड एंड इज़ वैल्यूएबल। फूड जिहड़े कहते बेसिक नीड हैगी है साड़ी जरूरत रोज़ जरूरतमंदान की जी बेसिक है ना नीड जरूरत हैगी, एंड वैल्यूएबल बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान चीज़ हैगी है फूड खाना। ये स्टूडेंट वेस्ट लॉट ऑफ फूड, जो कई बच्चे जो होंगे स्टूडेंट ना एक विद्यार्थी बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट करता है। हाउ विल यू एक्सप्लेन टू हिम और हर द वैल्यू फूड। तो उस बच्चे को है ना
ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਫੂਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਵੈਲਿਊਏਬਲ because our parents do so much hard work for available us food, and if we available food for us, and if we waste food then it means we are not respecting the hard work of our parents, so you should value food। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫੂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਵੈਲਿਊ ਫੂਡ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼। ਸੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੇਕ ਅ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਗੁੱਡ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੈਵ ਯੂ ਮੇਡ ਐਨੀ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। तो ये तुसी ये आंसर लिख सकते हो कि आई हैव ब्रश माई टीथ ट्वाइस डे, आई हैव यूज अ स्पून वाइल ईटिंग, आई हैव नॉट टॉक वाइल ईटिंग, आई हैव नॉट वेस्ट फूड, आई हैव वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। ये 5 गुड हैबिट्स तुसी लिख सकते हो। ओके, होर भी कुछ जड़ियाँ हैबिट्स तुहानूं देखो, फस्ट एक्टिविटी जी सी ना चैप्टर नंबर फस्ट की फस्ट एक्टिविटी, उत्थे तो कितनी गुड हैबिट्स उत्थे तुसी ऐड कर सकते हो। अगे अगे डिफिकल्ट वर्ड्स जिहड़े आ देखो, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जिहदी मीनिंग है, ठीक है। तो क्लैस्प्ड, बैबलिंग, स्टैगर्ड, एपेटाइट, डिवोरिंग, सैचुरेटेड, ग्रिसली, चैटिंग, ठीक है। इहदा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो ले लिया। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है ग्रेव, कन्वर्स्ड, एनक्वायर्ड, टंग टाइड, पैसिफाइंग, डिस्क्लोज्ड, अनफॉर्चुनेट, स्टार्वेशन, एडिक्वेट्स, गॉबलिंग, रैशली, रेविनस, इंस्टिल, कॉन्फिडेंस, स्ट्राइक, रैशली, मील। इन्हें सारे दे डिफिकल्ट वर्ड्स, पूरे चैप्टर जो आप डिफिकल्ट वर्ड्स है मीनिंग इतने लिखे, तो तुम ईजिली तो डिफिकल्ट वर्ड्स की ट्रांसलेशन तुम देख सकते हो और ईजिली तुम चैप्टर भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इतने साडा जिहड़ा चैप्टर है खत्म होंदा है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, सब तो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज़। ओके, तो इत्थे साडा जिहड़ा फस्ट चैप्टर है खत्म होंदा है, दैट इज़ अ गुड ईटिंग हैबिट्स। तो इहदे विच इस वीडियो दे विच आपां पूरा चैप्टर डिस्कस किया, अंडरस्टैंड किया, रीड किया है ना, और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आप अच्छी तरह डिस्कस कर लिए हैं। तो जो स्क्रीनशॉट्स दिते हैं तो अपने कॉपी ते तो क्वेश्चन के आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो। इस वीडियो के खत्म होने तो बाद सब तो पहले तो अपने चैप्टर चंगी तरह रीड करियो। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, चंगी तरह समझियो, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिख के अंडरस्टैंड समझ के इन्हूं लर्न करियो। ओके, सो उम्मीद है, आई होप कि तुहानूं ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होएगा एंड तुसीं ये वीडियो तुहानूं बहुत ही पसंद आई होएगी। आई होप, उम्मीद है कि तुहानूं चैप्टर चंगी तरह पसंद आ गया होएगा, राइट। सो ये चैप्टर तो बाद नैक्सट चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, टाइम मैनेजमेंट। अगर तुसीं इस चैप्टर तो अगला नैक्सट चैप्टर है सेकेंड चैप्टर टाइम मैनेजमेंट, यदि तुसीं वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आर के क्लासेस। So please subscribe my channel RK Classes. If you like this video, so please share this and like बटन क्लिक जरूर कर दियो and bell icon press कर दियो ताकि जी नेक्स्ट वीडियोज़ फॉलोइंग वीडियोज़ जो आनी है और तुहानूं ईजिली तुहानूं पता लग सके और सब तो पहले तुहाडे फोन ते मैसेज वो आ सकन, ठीक है। तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दी अदर वीडियोज़। अगला नेक्स्ट चैप्टर साडा है टाइम मैनेजमेंट फॉर, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।